So what we were discussing, I think we were on this question, right? E raised to power iota theta. So e raised to power iota theta, how could you write? I mean, I think I can write it in the fashion. Let's say what is theta? Theta is nothing but argument of z, isn't it? Theta is what? It is nothing but argument of z. So in polar coordinates, if I write theta, it will be nothing but argument, isn't it? An argument can be written as tan inverse y over x. And what is tan inverse y over x? Y is nothing but imaginary part of z, and x is nothing but real part of z. So after all, I can write imaginary part as, I think, z minus z bar divided by 2 iota. And I can write real part as z plus z bar divided by 2, not iota, sorry. So what will be y by x? Y by x will be simply, I think, z bar minus z divided by z plus z bar. So obviously what you are taking tan inverse of this expression only, no? So you are taking tan inverse of this expression. So if you are taking tan inverse of this expression, so eventually you will find that your function depends upon what? Depends upon z bar. So e raised to power iota theta is a non-analytic function. I hope I've made my point clear. Yes or no? हाँ जी. या वापस बताना भैया, अभी Okay. ज्वाइन हुआ मेरा. Okay. So for example, I was saying देखो e raised to power iota theta क्या होगा? Argument of z. Argument of z क्या? Tan inverse y by x, याद करो. Y by x, tan inverse y by x. And y क्या? Imaginary part of z. X क्या? Imaginary part of z. Sorry, real part of z. Y is imaginary part of z. You can write it in z minus z bar divided by 2 iota. X is a real part of z. You can write z plus z bar divided by 2. What can you write about y by x? Y by x will be z minus z bar divided by 2 iota. And z plus z bar divided by 2 gets cancelled by 2. You multiply iota on numerator and denominator, you will get this expression. And tan inverse, so theta is what? Tan inverse z bar minus z. I think this will be with some iota also. So this will be your argument, isn't it? And e raised to power argument iota. So this particular expression is written here. And this particular expression depends on z bar. Okay, so e की power iota theta is a non-analytic function. Yes or no? भैया हम z is equals to e to the power iota theta नहीं लिखते थे क्या? Z raised to power e raised to power iota theta बेटा कब लिखते थे? When you were saying that your point is on the circle. Okay, unit radius. Unit radius of unit radius. So I'm not, यहाँ ये तो हो गया पॉइंट, ये हो गई पॉइंट. यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की. ये फंक्शन है तुम्हारा. ओके. So this is your function fz. ठीक है. So function e raised to power iota theta, क्या ये एनालिटिक होगा या नहीं? This is what I'm asking. समझ पा रहे हो मेरी बात? So I'm saying अगर मेरा फंक्शन fz है, e raised to power iota आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो मुझे बताओ कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है कि नहीं. यहां पर जो बेटा बात हो रही थी, दैट वाज अबाउट पॉइंट. ये पॉइंट की बात कर रहे थे. दिस वाज पॉइंट. दिस इज हियर व्हाट आई एम सेइंग इज फंक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई? अच्छा, ये वाला तो बड़ा आसान है, इसमें तो क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स. बताओ एनालिटिक होगा नहीं होगा? Analytic. This is analytic, absolutely analytic. fz is z square. Who stops me from writing this? Yes or no? Okay, Yes. so e raised to power iota theta is a non-analytic function. Why? Because see, theta you can write it as argument of z. Tan inverse y by x. Y is imaginary part of z. X is real part of z, and z, imaginary part of z you can write in this fashion. Real part of z you can write in this fashion. Overall, you'll find that e raised to power iota theta. Here it is not point I'm saying. I'm saying function. So function is fz is equal to e to the power iota argument of z. Whether it is a analytic or not. No, it is not an analytic function. Here you see z bar dependence. A function that was given to you was this. I think this question. I think एक मिनट देखने दो. अच्छा, ये वाला question भी रह गया ना? Sorry. So what about this question? Let me write it all over again. So this question, x square plus x plus 1, एक मिनट देखने दो यार क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस iota y into 2x plus 1. Okay, what about this function? What do you think about this function?
So it's analytic. It is analytic function. How do you say it is an analytic function? So it's getting the form of 1 plus z square. Very good. So it can be written as z square plus z plus 1. So function can be written as z square plus z plus 1. बस तुम कलेक्ट कर लो टर्म्स, कुछ भी नहीं। देखो ये x स्क्वायर अभी भी दिखा, ये माइनस वाई स्क्वायर दिखा, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई दिख गया। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है तुम्हारे पास? x प्लस आयोटा वाई, और रिमेनिंग की टर्म क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन z। ठीक है, और मैंने पहले दिन कह दिया z रेज़ टू पावर n इज एन एंटायर फंक्शन, नो इश्यूज अबाउट इट। in fact you'll find that it is analytic on the entire complex plane, sorry, in the finite complex plane। ओके, ये सॉल्व नो, समझ में आई मेरी बात? सो ये हो गई बात एनालिटिसिटी की। अब हम कर रहे हैं सिंगुलैरिटीज की बात। ओके, सो व्हाट आर सिंगुलैरिटीज? सिंगुलैरिटीज आर दोस पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन ceases to be analytic, yes or no? Where function ceases to be analytic, yes or no? Now singular points are divided into two categories. For physics point of view, this is not that important, but still, because the course goes like this, so I'll go like this only. One is called as isolated singularity, another one are called as non-isolated singularities. Okay. So what are isolated singularities? So point number one, what are isolated singularities? Okay, a point z equal to z naught is called as an isolated singularity. I'll write IS, is called as isolated singularity if there exists a del greater than 0 such that mod z minus z naught less than del क्या कह सकते हैं, encloses no other singularity except z equal to z naught। पहले समझने की कोशिश करो सिंगुलैरिटी है क्या। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। से एग्जांपल 1 upon z, so at z equal to 0 your function is non-analytic, yes or no? Okay, so function is non-analytic at z equal to 0, so this is z equal to 0 is a singularity, yes or no? अब singularities are divided into two part, isolated and non-isolated singularity। isolation समझते हो? isolation मतलब अकेला कर देना किसी को, अकेला, बिल्कुल पृथक, हिंदी में बोले तो पृथक। ठीक है, तो isolated means completely isolated, different, बिल्कुल उसको अलग कर देना। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कह रहा हूं कि z नॉट मेरा आइसोलेटेड है, इन व्हाट सेंस आइसोलेशन? भाई कोई भी व्यक्ति आइसोलेटेड रह सकता है? नहीं रह सकता, बट राइट नाउ आई एम आइसोलेटेड, आई एम कंप्लीटली आइसोलेटेड इन माय रूम, राइट? सो माय नेबरहुड says that I am isolated right now. But what if I say that your neighborhood contains your city? So obviously I'm not isolated. City would contain obviously people, I'm not isolated there. So in order to define isolation, I need to define what is del. So I will say कि क्या कोई भी del मिल रहा है क्या? कोई भी del अगर मिल जाए मुझे, कोई भी ऐसी जगह मिल जाए, कोई भी ऐसी डिस्टेंस मिल जाए जहां z नॉट के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई भी मींस कोई भी, as small as possible, as small as possible। अगर z नॉट के आसपास मुझे कोई एक सर्कल मिल जाए जहां z नॉट के अलावा कोई दूसरी सिंगुलैरिटी नहीं है, आई विल से माय z नॉट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बात समझ में आई? ओके, and if no such del can be found, if no such del can be found, I would say that my singularity is a non-isolated singularity। what? My z naught, देखो z naught को मैं कह रहा हूं isolated singularity। what does it mean? It means that the only singularity in some neighborhood, some मतलब कोई ना कोई neighborhood, एक भी neighborhood मिल गया, I am more than sufficient। let's say I am right now sitting in my room, I am all alone, so what is the radius of my room? In that radius I am isolated, absolutely isolated। but probably in my house right now there are 3 people, so I'm not isolated। let's say we 3 people are singularities, okay? we 3 people are singularities, and let's say this is my home right now। if I consider that del to be my home, I'm not isolated, but that is not the condition। I'm saying, does there exist some del such that I live in an isolation? Yes,
there exists a del. Let me say that del happens to be my study room's radius. Fine, I am isolated. So अगर एक भी del ऐसा मिल जाता है जहां मेरे अलावा कोई आइसोलेट, मेरे अलावा कोई नहीं है, या फिर एक कोई del मिल जाता है जहां z0 के अलावा कोई दूसरी सिंगुलैरिटी नहीं है, that is it, complete end of the story. Z0 is isolated. For example, how would I say? Let's say, for example, what can you say about this? 1 over z minus 1, z minus 2. So singularity is clearly, you can see 1 and 2. I don't think that is a problem for you at this stage of time. I think you are able to understand z equal to half and z equal to 2 and z equal to 1 are clearly singularities. Are they isolated? Are they isolated? Yes, indeed they are. Can I not make a circle of radius 1 by 2? Can I not make a circle of radius 1 by 2? Indeed, in this radius and in this radius, I have only singularity 2 and 1. The other singularity does not come into this. Here in this radius, only singularity I have is 1. The other singularity does not come here. Don't say कि नहीं मैं क्या इससे बड़ा सर्कल नहीं बना सकता, नहीं बना सकते. What I'm, who stops you from doing that? I'm not saying that. I'm saying, does there exist a neighborhood of 1 where only 1 is a singularity? Yes, there exists a neighborhood where only 1 is the singularity, not 2. And does there exist a neighborhood of 2 where 2 is the only singularity? Yes, there exists a neighborhood where 2 is the only singularity, 1 does not come into that particular neighborhood. ये चीज समझ में आ रही है कि ऊपर से चली गई है? कि यस वापस सर आ रही है। बालकों को, तुम्हें तो आ जाएगी, इन बालकों को, फिजिक्स वाले बालकों को। तुम तो पूरे साले रियल एनालिसिस पढ़ते हो, तो सिंगुलैरिटी, नेबरहुड ये सब चीजें तुम्हारे लिए लाइफ इजी। इन लोगों बच्चों के लिए पूछो, कोई प्लीज पूछो, किसी को नहीं समझ में आई हो तो। मोहित पूछो। सर सर्कल कितना भी छोटा हो सकता है? कितना भी छोटा, कितना भी छोटा, उतना छोटा कि उसमें वही है, बस बात खत्म। उसके अलावा कोई और तो नहीं फिर होना चाहिए। तो सर सारी आइसोलेटेड ही होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। एग्जाम्पल आई गिव यू, बट अभी के लिए समझ में आया ना? तुम्हारे भाषा में कोई भी छोटे से छोटा डेल मिल गया तुम्हें, दैट इज इट, डन, यू आर डन। ठीक है, जी सर, बात जी समझ सर। में आई? जैसे 1,2 है, तुमने कहा 1,2, तुमने कहा अच्छा इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, 1 है ना, मैं काम करता हूँ 1/2 का रेडियस ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया ना, इसमें 1 है। हाँ, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, हाँ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड सच दैट ओनली 1 इज द सिंगुलैरिटी। तो 1 क्या हो गया? आइसोलेटेड। अब तो आंसर टू हिज क्वेश्चन विल बी एन एग्जाम्पल। ठीक है, so in real analysis or in analysis, the methodology that we follow, our students follow, like anybody who, in analysis follows, is either you have to write a proof, or give me a counter example. This is what we do in analysis quite often, like Gopal and Diksha and all these people are know this thing. So what do we do? Either we write a proof or we write a given a counter example. So right now I'm giving a counter example to Bharat's assertion. He says that every of the singularity will become an isolated one. So here I'm giving you an example. Let's say if I say, what can you say about this function? Fz is equal to 1 over sine of, I think if I'm not wrong, this is the function. Okay, so this is the function. So what can you say about this? Or for simplicity, you just give me this. I think this will be better. What can you say about this? So what are, पहले तो singularities बताओ फटाफट से। भरत बताएगा what are the singularities बेटा, आराम से। Sir, 1/n. Z equal to 0 for sure, ये तो है ही, it cannot be 0. Yes. Okay, and another singularity will be pi by z is equal to n pi. और याद रखना प्लीज, ये इसलिए नहीं है कि साइन थीटा 0 होता है तो थीटा n pi होता है, ये मत कर याना कहीं पर भी। नॉट बिकॉज दिस। ठीक है, आई एम रीट्रेटिंग, क्योंकि ये तुम गलतियां करोगे वहां जाके, मैं मना इसलिए करता हूँ, और कोई रीजन नहीं है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज कि साइन थीटा 0 होता है एंगल एन पाई होता है, नो, यहाँ पे कुछ भी एंगल वैंगल कुछ नहीं, भूल जाओ, बिकॉज ऑफ दिस। कोइंसिडेंटली या लकीली
वो वही सिंगुलैरिटीज आ रही है प्योरली रियल जो इधर आती थी ट्रिग्नोमेट्री में, बट ट्रिग्नोमेट्री इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? ये अलग चीज थी, ये अलग चीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो बच्चे नहीं समझ पा रहे, मैं बोल रहा हूँ ये समझना है, ये गलतियां करते हैं बच्चे, और ये फिर कहीं इंटरव्यू में कर होगे, वो वहीं तुम्हें पकड़ लेंगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, वन अपॉन एन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? लेट्स से हम पॉजिटिव ओरिएंटेशन ही ले रहे हैं, जिससे नेगेटिव नहीं ले रहे अभी के लिए, फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव एंगल्स। ओके, कोई इश्यूज? So Bharat says these two will be singularities. I hope everybody agrees to him. अरे हाँ या ना तो बोल दो गधों। भीमसेन क्या है बेटा, आया समझ में? मोनिका समझ में आया बेटा? यस सर आ रहा मोहित है। समझ मोहित समझ में आया? हाँ जी भरत समझ भैया। में आया? अल्पना समझ में आया? ठीक है, ओके। सो अब मुझे बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट z इक्वल टू 1 ओवर n? इज इट एन आइसोलेटेड वन और नॉन आइसोलेटेड? इज इट एन आइसोलेटेड वन? यहां से दिमाग चालू कर दो, बिकॉज यहां से अब एग्जाम का चालू हो गया है, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पोल सिंगुलैरिटीज ये सब आएंगी, तो मतलब मन नहीं भी लगा रहे हो तब यहाँ से मन लगाना चालू करो। ठीक है, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा बनाता हूँ जिससे कि तुम्हें विजुअलाइज हो जाए। लेट्स से 1 यूनिट यहाँ पर कहीं पर, सोचो n1 रखोगे तो 1 आएगा, n2 रखोगे तो क्या आएगा 1/2, n3 रखोगे तो क्या आएगा 1/3, n4 रखोगे तो क्या आएगा 1/4, सो ऑन एंड सो। और जो मैथ्स पढ़ रहे हैं दे ऑलरेडी नो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी। जीरो। इसका मतलब 1/n-0 का मॉड कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैथ्स वालों को, फिजिक्स वालों को नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन मैं पीपल आर फ्रॉम फिजिक्स, तो मैं थोड़ा सा इजीली समझाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, यूज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी in order to establish that z equal to 0 will be a non-isolated singularity. ये मैं तुम्हें suggestion दे रहा हूँ, the people in mathematics, I'm giving you a suggestion that use the Archimedean property, use the limiting value of 1 over n, and you have to tell me in mathematical terms z equal to 0 is a non-isolated singularity. Physics वालों को मैं अलग तरीके से बताऊंगा, okay? ठीक है, because they are not very acquainted to these ideas, है ना? आइडिया वही है बट राइटिंग बेस। ओके, तुम्हें ऐसे लिखना है, यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन दिस फैशन, कहीं पर भी एग्जाम में प्लीज ऐसा मत करना, यू हैव टू राइट इन दिस फैशन, मैथमेटिक्स पीपल, ओके, नॉट फिजिक्स पीपल। ओके, अब मुझे बताओ 1,0 के आसपास क्या मैं नेबरहुड बना सकता हूँ? आप बना सकते हैं क्या? 1/2, 0 के अलावा बना सकता हूँ? बना सकता हूँ 1/3। तुम कहोगे अरे यार ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लार्ज होते जा रहे हैं क्या ये डेंस नहीं होते जा रहे हैं सिंगुलैरिटीज? थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा क्या यहाँ पे अब नेबरहुड बन सकता है? देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वी आर सीइंग, देखो ये लेंथ 1 थी, ये लेंथ हाफ हो गई, ये लेंथ 1/3, ये लेंथ 1/4 हो गई, इवेंचुअली 1/5, 1/6, धीरे धीरे वी आर शॉर्टनिंग आवर इंटरवल्स, शॉर्टनिंग द लेंथ। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो देयर मे बी अ क्वेश्चन वेर यू मे फील कि यार इस पर्टिकुलर रीजन में धीरे धीरे द सिंगुलैरिटीज विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी डेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेंस नॉट इन टोपोलॉजिकल सेंस बट डेंस, because maths people are also here, so they study something called as denseness. I'm not saying dense in the sense of topology, I'm saying dense because these all singularities are like now getting very close to each other. Are you getting my point? Bharat को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश करूं बेटा? Yes, sir. So there may be a question from Bharat's side. He may say no, it may be an isolated singularity, probably n is some very n is like 1, 2 or 3, or probably when n goes large it may not remain to be an isolated one. He may say this, he may say okay, अभी देखो 1 तो बहुत पास आ रहा है, n को लार्ज लो, इन्फिनिटली लार्ज लो तो बहुत छोटे होते चले जाएंगे, और छोटी हो जाएगी डिस्टेंस, और छोटी हो जाएगी। सो कैन आई make a singularity, can I make a neighborhood about this point? It may arise a doubt, it may arise a doubt, but understand my point, between any two real numbers there are again infinitely many real numbers. So let's say if Bharat says me this argument, I will say okay, तो दो सब्सिक्वेंट नेबर्स तो होंगे इसके, ये तो मानते हो, दीज विल बी द टू नेबर्स 1/n। ऐसा करो यहाँ माइक्रोस्कोप लगा लो, ना यहाँ माइक्रोस्कोप लगाया, और माइक्रोस्कोप लगाने से ये इतना बड़ा दिख रहा है, ओके, द एग्जैगरेटेड वर्जन। इज इट क्लियर टू यू? अब हु स्टॉप्स मी फॉर डिफाइनिंग अ नेबरहुड? मैं कह रहा हूँ लेट मी डिफाइन अ नेबरहुड। क्या मैंने डिफाइन की? मैंने इन दोनों का डिस्टेंस लिया, इन दोनों का डिस्टेंस लिया, इन दोनों में जो भी मिनिमम आया उसको हाफ कर दो, खत्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/3, 1/2, इन दोनों का डिस्टेंस लो, कितना था बेटा?
भरत बताओ, इन दोनों का डिस्टेंस आएगा 1/6, इन दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा 1/12. What I'll do, I'll find the minimum of them, let's say 1/12, और इसका हाफ और कर दो फॉर ऑन द सेफर साइड तो 1/24. अब तुम 1/24 का अगर रेडियस लोगे 1/3 के पास, तो कभी भी 1/3 के अलावा दूसरी सिंगुलैरिटी आ ही नहीं सकती. सोचो, थोड़ा सोच के जवाब दो, क्योंकि 1/4 और 1/3 के बीच का डिस्टेंस क्या था याद करो, 1/12 था, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 1/6 था. तो 1/24 का अगर रेडियस बनाओगे, ये तो यही रह जाएगा ना, इसमें सिर्फ 1/3 तो रहेगा, और कौन आ सकता है इसके अंदर इसके अलावा. So my prescription would be, just make a neighborhood such that it is nothing but minimum of 1/n minus 1 minus 1/n का mod, comma 1/n minus 1/n plus 1. इन दोनों का मिनिमम ले लो और मिनिमम को हाफ और कर दो, और बढ़िया. अब इसका नेबरहुड अगर कभी भी लोगे तो 1/n के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं होगी इसके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब 1/n जो सिंगुलैरिटी है, इट इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट. लार्ज से लार्ज भी n लोगे तो भी आइसोलेटेड ही रहेगी. ये समझ में आई बात की ऊपर से चली गई? यस सर. मोनिका को समझ में आया बेटा? हाँ जी भैया. ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो. हमें क्या करना है, हमें ये बताना है क्या 1/n के पास कोई ऐसी सिंगुलैरिटी हो सकती है जहां 1/n के अलावा कोई और ना हो. तो मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझा रहा हूँ. देखो 1/4 मानो, 1/3 मानो, 1/2 मानो. अब सोचो मुझे 1/3 के आसपास ऐसी एक नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करनी, तो मैंने क्या किया, ऑन द सेफर साइड ये 1/6 है, ये 1/12 है. मैंने कहा यार ऑन द सेफर साइड इससे जो भी मिनिमम आ रहा है उसका आधा कर दो. 1/24, 1/24 के अगर नेबरहुड लोगे, इन एनी केस उस नेबरहुड के अंदर ओनली 1/3 रहेगा. सिमिलरली 1/n ये रहा, 1/n minus 1 ये रहा, सॉरी 1/n plus 1 ये रहा, 1/n minus 1 ये रहा. तो मैं क्या कहूंगा, इसके डिस्टेंस ले लो, इसके डिस्टेंस ले लो. लेट्स से ये डिस्टेंस del1 है, ये डिस्टेंस del2 है. इनमें जो मिनिमम आ रहा है उसको ले लो. लेट्स से जो भी मिनिमम आ रहा है उसको ले लो और उसका हाफ कर दो. इससे क्या होगा, इफ आई टेक दैट नेबरहुड, दिस इज माय नेबरहुड, या दिस इज नेबरहुड अबाउट 1/n, तो ओनली 1/n विल रिमेन देयर एज अ सिंगुलैरिटी, नो अदर सिंगुलैरिटी वुड रिमेन. सोचो ना, इस डिस्टेंस से मिनिमम ले लिया और उसका हाफ कर दिया, तो ऑब्वियसली अब इसमें से 1/n ही तो रहेगा, और कोई थोड़ी रह सकता है. इसका ना 1/n कैसे सिंगुलैरिटी हुई, आइसोलेटेड हुई कि नहीं हुई? यस और नो? कहां चले गए बच्चे? यस और नो? यस भैया. Okay, what about z equal to 0? What do you think z equal to 0 would be? Will it be an isolated one, or will it be a non-isolated singularity? A hint that I'm giving to you is Non-isolated. non-isolated. The limit n tends to infinity 1/n, लार्ज से लार्ज कहां भागेंगे, 0 की तरफ भागेंगे, हाँ या ना? अब सोचते हैं हम z equal to 0 के अबाउट कोई भी छोटी से छोटी, जो भरत ने कहा था वही. भरत कह रहा था क्या मैं छोटी से छोटी कोई भी नेबरहुड बना सकता हूँ? ओके, तो बनाओ छोटी से छोटी. कितनी नेबरहुड बनाना चाहते हो, कितनी छोटी बनाना चाहते हो, बोलो. तुम कहोगे यार 1/2, 1/3, ये 1, ये सिंगुलैरिटीज अलग है, मैं इसको अलग पेन से बना रहा हूँ. ये सिंगुलैरिटीज अलग है, 1, 1/2, 1/3, पर ये सिंगुलैरिटीज अलग है. भरत कहेगा यार 1/4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1/4, 1/5, ये तो सारी सिंगुलैरिटीज इसमें आ जाएंगी. 0 के अलावा कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज है? एक तो 0 सिंगुलैरिटी दिख रही है तुमको, और एक 1/n टाइप की सिंगुलैरिटीज दिख रही है. ठीक है, तो दो तरह की सिंगुलैरिटी, एक तो ये सिंगुलैरिटी है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल. एक सिंगुलैरिटी क्या है बेटा, 0. अब प्रॉब्लम क्या है, तुम 0 के अबाउट कोई भी नेबरहुड बनाओगे, ये तो कुछ आ रही है, तो भरत क्या ट्राई करेगा, भरत को ट्राई यार कितनी छोटी से छोटी बना लूं कि मेरा काम चल जाए, राइट? एग्जैक्टली इन हिज टर्म्स ही सेड कि ट्राई टू मेक एज स्मॉल एज पॉसिबल नेबरहुड, इजंट इट? तो वो क्या ट्राई करेगा, ही विल ट्राई टू एस्केप. तो अब छोटी से छोटी नेबरहुड बनाए, लेट अस मेक एनी सॉर्ट ऑफ नेबरहुड, लेट्स से del. बोलो कितना छोटे से छोटा चाह रहे हो? Bharat, tell me how small do you think would be enough for me to escape the singularities of type 1/n? Let's say Bharat says he makes a neighborhood of Fermi level. Okay, he says I like nuclear physics. I'm a person who works in quantum information computation. I deal with all sort of microscopic things. So I'll make such interval as small as possible. Okay. So Bharat says 10⁻⁻50. Okay. So he's very, very satisfied. He says, okay, this is a very narrow dimension. Very narrow. So probably I will not have any sort of 1/n type things. Now what I will do, I will say, okay,
just let me do one thing. Natural numbers कैसे होते हैं? Natural number bounded होते हैं, 1, 2, 3. Natural number कैसे होते हैं? Unbounded होते हैं, मानते हो? बढ़ते जाएंगे, कभी ना कभी 10⁻15 भी आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है. कभी कभी 10⁻16 भी आएगा, इसके आगे 10⁻17 भी आएगा, 10⁻18 भी आएगा. नेचुरल नंबर तो बाउंडेड नहीं होते ना, वो तो बढ़ते जाएंगे. तो खुद सोचो 1/n क्या आएगा? क्या 1/n 10⁻15 से छोटा नहीं हो सकता? देखो इन सारे नंबर्स के लिए क्या होगा? 10⁻16, 10⁻17, 10⁻100 के लिए क्या हो जाएगा? 10⁻100. So there will be natural numbers which are greater than 10⁻15, isn't it? उनके लिए 1/n निकालोगे तो 10⁻15 से छोटे आएंगे सारे नंबर्स, मानते हो? और तुमने रेडियस बनाया 10⁻15, इसके अंदर 10⁻16 नहीं आ जाएगा क्या? इसमें 10⁻17 नहीं आएगा क्या? इस लाइन के अंदर 10⁻18 नहीं आएगा पॉइंट? ये सारे पॉइंट्स इसी में आएंगे. और क्या ये पॉइंट्स 1/n टाइप की सिंगुलैरिटीज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे? सोच के जवाब दो. 1/n टाइप की सिंगुलैरिटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं. तुम कितना छोटे से छोटा भी रेडियस बनाओगे, 1/n टाइप की सिंगुलैरिटीज हमेशा आ जाएंगी जीरो के नेबरहुड में. So however small interval you may try to make about z equal to 0, there will be singularities of type 1/n. In fact, for mathematics people, you can understand limiting value of n tends to infinity is 0. In fact, this is a limit point. And topologically speaking, limit point is a set of accumulation points. So obviously, there will be infinitely many members of the set contained in any neighborhood of 0. So in physics people, come back to the concept, तुम z equal to 0 के about कितनी छोटी से छोटी भी neighborhood बनाना चाहो. Let's say anybody who works in, let's say, Yotta dimension comes out and say, okay, 10⁻18 would be a very safe sort of neighborhood for me. I would say no, not at all. See, 1/n type की singularities में 1/1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, बढ़ते जाएंगे 10⁻18 भी आएगा, 1/10⁻19 भी तो आएगा, 1/10⁻20 भी तो आएगा. ये सारे नंबर्स भी तो आएंगे. ये 10⁻19, 10⁻20, 10⁻21, ये जो सिंगुलैरिटीज है 1/n टाइप की, क्या इसके अंदर कंटिन्यू ना चालू हो जाएंगे? In any case, however small type, small interval, however small neighborhood you'll try to construct, you can easily convince yourself that z equal to 0, any neighborhood of z equal to 0 will obviously contain the singularities of type 1/n. कितना छोटे से छोटा भी neighborhood बनाओगे, z equal to 0 की neighborhood में you will always find the singularities of the type 1/n. So z equal to 0 turns out to be a non-isolated singularity. Yes or no? कहाँ चले गए सारे बच्चे? गायब ही हो गए क्या? भाई कल से गायब मत हो जाना, आना है रेगुलर, ठीक है? हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, धीरे धीरे आ जाता है. कहाँ चले गए सारे बच्चे? गोपाल समझ Yes, में आया sir. बेटा? भरत को समझ Yes, में sir. आया? मोहित को समझ में आया? मोहित है ही नहीं क्या आज? सर. समझ में आ गया बेटा? हाँ सर. कितना छोटे से छोटा भी नेबरहुड बनाओगे ना. देखो फॉर एग्जांपल वापस से लेट्स से मोनिका कहती है, लेट्स से मोनिका का डेल है. मोनिका कहती है रुक जाओ यार, तुम सब बेकार डेल ले रहे हो, अच्छा सा डेल लेते हैं और इस मामले को ही खत्म करते हैं. मोनिका सेज टेक डेल इक्वल टू 10⁻−100. तो शी सेज कि z इक्वल टू 0 के अबाउट अगर मैं ये बना लूंगी ना, इस तरह का रेडियस 10⁻, और ये सब है ना 10⁻100 दिखेगा भी नहीं, लेकिन ये मैं एग्जैगरेटेड वर्जन बना रहा हूँ. लेकिन मैं कहूंगा रुक जा, 1/n टाइप की सिमिलरिटीज है ना, 1, 1/2, 1/3 डैश डैश, इसमें 10⁻100 तो आएगा, पर क्या 10⁻101 नहीं आएगा? 1/10⁻101 भी आएगा, 1/10⁻102 भी तो आएंगे, ये सारे पॉइंट्स भी तो आएंगे. ये सारे पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी? 10⁻−101. इसकी वैल्यू क्या होगी? 10⁻−102, so on and so forth. ये सारे पॉइंट्स क्या यहाँ कंटेन नहीं हो जाएंगे 10⁻100 जाके? सोच रहे हो ये यहाँ इस रेडियस के अंदर नहीं आ जाएंगे? 10⁻−101, 10⁻−102, 10⁻−103, 10⁻−104, so on and so forth, 10⁻−200. ये सारी जो सिंगुलैरिटीज है किसमें है? 1/n टाइप की सिंगुलैरिटीज है. क्या ये इसमें कंटेन नहीं हो रही इसके नेबरहुड में, z equal to 0 के नेबरहुड में? तो मोनिका ने कहा कि 10⁻−100 का नेबरहुड ले लो. Even that is not sufficient. Are you getting my point? So however small you may try to make, 1/n type of singularities will obviously come.
And for mathematics student, try to relate it with the concept of limit point. So 1 upon n की limiting value क्या थी? 0. Try to write this argument in Archimedean by Archimedean principle and you will fairly get it. समझ में आ रही मेरी बात? तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. You have to write this argument not in this sense. ये तो physics में को I don't have that kind of construct कि मैं del और ये सब चीजें use कर सकूँ. That is why I'm stating them in this fashion. You have to write it in this fashion. I've told you already. Okay, for all n greater than equal to. So if you make a neighborhood of z equal to 0, let's say epsilon, so there will obviously exist some n naught. There will always exist n greater than equal to n naught, such that 1 upon n minus 0 ka mod can be made less than epsilon. So any neighborhood of any arbitrary neighborhood, any arbitrary small neighborhood of z equal to 0 will obviously contain the singularities of type 1 upon n, since the limiting value of 1 upon n happens to be 0. So this is for mathematics. Physics people don't get this is for mathematics. Okay. So this is an argument that mathematics people will give me, a single line argument. For physics people, I have made you realize that however small interval you might take about z equal to 0, or however small neighborhood you try to make around z equal to 0, you will always be confronted upon by the singularities of type 1 over n. So in any case, z equal to 0 would be a non-isolated singularity. Yes or no? ये चीज समझ में आ रही है? ऊपर से चली गई है. Yes or no? Yes, sir. Let's say what are the Sir, rules? हाँ बेटा बोलो. सर 1/n क्या होगा? आइसोलेटेड होगी 1 upon n isolated है. जो देखो 1/n वाली singularity. 1 upon n isolated है. आप उसके पास हमेशा कोई ना कोई नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जहां पे 1 upon n सर बिल्कुल लेकिन सर इसकी लेकिन लिमिटेड लिमिट वैल्यू जो है इसकी भी जो सेम आर्ग्यूमेंट हम जो z इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं उस 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी तो कर सकते हैं कि जो कर लास्ट सकते हो, वाली. बट दैट इज टेंड्स टू इंफिनिटी. दैट इज नॉट एग्जैक्ट. ये कोई नंबर नहीं है बेटा. इट इज टेंडेंसी. इट इज ग्रोइंग लार्ज. तुम बोलो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ? 10 पर माइनस 100 लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ? 10 पर माइनस 100 लो. 10 पर माइनस 100 के पास मैं हमेशा 2 बता सकता हूँ. दैट विल बी 10 पर माइनस 100 एंड आई थिंक इट विल बी आई थिंक 99. सर लेकिन मैं z इक्वल टू 0 के पास की बात कर रहा हूँ. हाँ, z इक्वल टू 0 के पास की बात कर रहे हो, पर क्या z इक्वल टू जैसे 0 1 अपॉन n का मेंबर है? पहले ये बताओ, क्या 1 अपॉन n में 0 कभी भी आएगा क्या? 0 आएगा क्या? आई एम सेइंग आएगा क्या? z इक्वल टू 0 क्या आएगा इस नहीं, लेकिन सर बहुत पास तो होगा. जैसे z बहुत पास इक्वल टू आएगा 0 क्या? आंसर है आएगा क्या? नहीं आएगा. नहीं That is आएगा it. तो. बस. तो z इक्वल टू 0 अलग हो गया. समझ रहे हो मेरी बात? अरे मैं तुम्हारी बिल्कुल बात समझ पा रहा हूँ. आई कैन गेट योर पॉइंट. यू आर सेइंग कि आप जब 1 अपॉन n कह रहे हो तो why you are not taking 0 in that set, right? This is your preliminary inquiry, right? तो अगर z इक्वल टू 0 उधर ले रहे हो तो आप कह रहे हो 1 अपॉन n के पास तो 1 अपॉन n जो है वो 0 अगर इसमें कंटेन हो जा रहा है और 1 अपॉन n को आप नॉन सॉरी आइसोलेटेड कह रहे हो तो 0 भी आइसोलेटेड होना चाहिए. फॉर दैट मैटर दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. यस सर. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या 1 अपॉन n के सेट में 0 कंटेन होगा? मतलब क्या 1 नहीं अपॉन n में नहीं होगा बेटा? दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट. नो डाउट इसकी लिमिट है, पर ये इसमें कंटेंट नहीं है. इस सेट का मेंबर नहीं है 0. इसके जितना पास जाना चाहो चले जाओगे, एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा. ठीक है. फॉर दैट मैटर लेट मी डू अ सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू. व्हाट भरत सेज इज, क्या 1 अपॉन n 0 0 क्या 1 अपॉन n वाले सेट का मेंबर होगा? लेट मी राइट. मान लो होगा, मान लेते होगा. तो अगर 1 upon n 0 होगा, that implies there would be some n which will be 1 over 0. How can it be possible? तो 0 limiting value है. I am completely adhering your point. I am not saying you are wrong there. But 1 upon n के सेट में 0 कंटेन नहीं होगा. तो 1 upon n हमेशा आइसोलेटेड हो जाएगा. तो 1 upon n के पास हमेशा कोई ना कोई आप एलिमेंट ढूंढ लोगे, जितना छोटा चाहो उतना छोटा. लेट्स से 1 upon 10 पर माइनस 100 बोला तो मैं कहूंगा 10 पर माइनस 100 ये रहा. 10 पर माइनस 99 ये रहा. 10 पर माइनस 101 ये रहा. ये लो, कहाँ दिक्कत है? इसके बीच के डिस्टेंस लो, इसके बीच के डिस्टेंस लो, दोनों का मिनिमम चूज करो, हाफ कर दो, खत्म गेम. यू विल बी एबल टू डू इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भरत समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो. नहीं समझ में आया? आ गया? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो. लिमिटिंग वैल्यू जरूरी नहीं है हमेशा कंटेन्ड हो सेट में.
ये चीज समझने की कोशिश करो. Let's say, for example, if I say limit x square, x tends to 2, no problem about it. ये contained है, मतलब समझ रहे हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे फंक्शन में डिफाइंड है 2 का स्क्वायर, और कोई दिक्कत नहीं. तो लिमिट लो चाहे वैल्यू लो, बात है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू कंटेन्ड ही ना हो सेट. तो लेट्स से 1/n, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, पर 0 मेंबर नहीं है सेट का. मतलब ये जो सेट बना हुआ है ना 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये 0 इसमें कंटेन्ड नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट. भरत समझ जी में सर. बेटा? ठीक हाँ है जी जी. सर. आई होप बहुत सारा हो गया. इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. थोड़ा सा इसको ऑब्जॉर्व करो. ओके, ट्राई टू ऑब्जॉर्व इट. कल से हम पोल से चालू करेंगे क्योंकि हार्डली 5 मिनट रह गए. सो नो पॉइंट गोइंग एनी फर्दर. Try to absorb all these things in your mind, and what you should be doing, what I'm asking you, like Wednesday say what I'm planning is somehow हम लोग EMT चालू कर दें, and my level would remain to standard 12th and BSc only. ऐसा समझ लो. So I'll not go beyond it initially. जब तक मैं इधर प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट करूंगा तब तक ये रखते हैं, क्योंकि अगर वेक्टर कैलकुलस मैंने बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर ली EMT में, तो अगेन फिर वही दिक्कत है कि वेक्टर कैलकुलस के अलग लेक्चर लेने पड़ेंगे, जो 2-3. अगर मैंने वेक्टर कैलकुलस के 2-3 लेक्चर लिए तो ये 3 मैथमेटिक्स हो जाएंगे. अभी ऑलरेडी तीसरी मैथमेटिक्स चली है, सबकी हालत खराब है सब. तो 2 मैथमेटिक्स तुम झेल लोगे, तीसरी नहीं झेल पाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया 2 तो हो गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तीसरे नंबर वेक्टर कैलकुलस चल रहा होगा. इट विल बी 3 लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स. दैट विल बी टू मच ऑफ डोसेजेस फॉर यू. I would suggest कि कोई भी एक बेसिक टॉपिक पहले चला देते हैं. Quantum mechanics also I can begin, but the only point I'm facing is that that will invoke lot amount of Fourier transform, especially in wave particle duality. In wave particle duality, I have to write my wave function. I have to write the evolution of wave packet. So for that, I need at least some hint of Fourier transform. So I'm refraining from doing that. In case अगर मुझे करना ही पड़ा तो I will start directly from stating कि this is the Schrodinger equation. Here I begin. So that may be a possibility. But overall, what I'm planning is EMT. I would start for basics, so that थोड़ा ही basics चलता रहेगा, थोड़ा physics भी चलता रहेगा. And meanwhile, we'll finish this off. And next chapter, most probably, I'll start Fourier transform and Dirac delta functions. So that will give me some edge in quantum mechanics and slight idea of like cat and Brown notation. You थोड़ा सा slight idea रखना, हम उसको sideways formulate करते जाएंगे. मतलब let's say linear algebra wise धीरे-धीरे उसको एक तरफ से formulate करते. This is what is my idea. I think तुम्हें कोई किसी को कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं. Anybody has anything to say? सर EMT बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब हम स्टार्ट करने की. तो फिर मैं क्या करूं, तुम बोलो. What do you want? I mean, क्वांटम भी कर सकते हैं. We can start quantum also. I have no issues. तो ये हम लोग ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं. You just make a consensus and most possibly इन्हीं में से कोई टॉपिक, EMT, statistical mechanics, classical और quantum. Just give me any of these topics. I will start. well, इनमें से कोई भी बता दो तो I will start. Modern physics I will have to study because literally I have never studied modern physics and given any net examination. So I don't know what comes there. So I'll have to go back to my drawing board. I have to start seeing the papers and I have to teach you accordingly. But here I don't have to see much of the things. So here I'm like in my PhD also, I'm like now busy, but overall I will be able to somehow sketch things up for you. Like even quantum mechanics I'm thinking to begin from the origin, like तो थोड़ा आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए. लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, इस तरीके से पढ़ेंगे तो तुम्हें बेसिक्स भी हो जाएंगे और ये छोटे मोटे टॉपिक्स तुम्हारे मॉडर्न में भी आते हैं. Or we can जी do like सर. Griffith way. We can straightway say this is the Schrodinger equation. Here we are writing the solution for different potentials. That also we can do. But as you feel, as you wish, जैसा तुम्हें सही लगे. So that develop a consensus on the group and we'll meet tomorrow. अभी तक किसी को ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं समझ में आया हो? भीमसेन समझ में आया बेटा? गोपाल सर को आ आया? रहा है. मोहित को आया? मोनिका को आया? कल्पना को आया? हाँ जी भैया. ओके, चलो इसको एब्जॉर्ब करना कोशिश करना, आ जाएगा धीरे. ठीक है सर कल वो क्वेश्चन दिया था यूनिटी के प्रोडक्ट वाला, हाँ बेटा. तो सर उसको थोड़ा रिपीट बता दीजिए ना, मैंने लेट ज्वाइन किया था. सर अभी ना 1 मिनट रह गया है. सो विल डू इट टुमारो. ठीक है, नहीं तो फोन कर लेना क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया, फिर अभी बंद हो जाएगा मीटिंग. सर उसका प्रोडक्ट क्या आया था, 1 या और -1? मैं एक्चुअली खुद ही भूल गया मैंने क्या क्वेश्चन दिया था. मुझे एक बार देखने दो ना, मैं एक्चुअली खुद भूल गया हूँ मैंने क्या कल दिया